Hello students, welcome to KRS class 12 subject accountancy chapter 2 accounts of not for profit concern. Now let's begin with question number 12 which is on page number 122. Question number 12, here account of a library is given. Now let's see that sum. See, if you have textbook, open page number 122. Okay, on 122 just I saw you that sum. You will get that sum over there. See what is given. Following is the receipts and payment account of Dhananjay Library, Mumbai for the year ending 31st March 2020. Means here receipts and payment account is given of one library. See, this is receipts and payment account, and what is given further. See, you are required to prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2020 and balance sheet as on that day. The following information is also made available to you. These are adjustment. See, number 1, first adjustment. On 31st March 2019, the library had the following assets. Okay, on 31st March 2019. See, what is your accounting year? It closed on 31st March 2020. Means it starts on 1st April 2019 to 31st March 2020. This is your accounting year, 1st April 2019 to 31st March 2020. Now see, these balances are given on 31st March 2019. 31st March 2019 means opening balances are given. 31st March 2019 closing means it's opening balances as on 1st April 2019. So opening balances are given. Books, furniture and machinery. Books, furniture and machinery. These balances are given. Okay, keep a note of this, that these are opening balances. We will see later where it will be useful to us. Second one, subscription received in advance. So mark this adjustment to subscription. See here, receipt side to subscription given right over there. Adjustment number 2. Third adjustment, outstanding salaries and rent. So mark to salaries and rent here, payment side. Adjustment number 3. Next one, 50% of admission fees should be capitalized. So mark to admission fees. See here, receipt side, admission fees given. So mark with adjustment number 4. Next, furniture to be depreciated at 10% per annum. Okay, see, there is nothing is given regarding furniture in receipts and payment account. So mark here. See, opening balances. In opening balances there is a furniture given. Mark near furniture that there is a adjustment number 5 on furniture. 6th one, library books were purchased on 1st April 2019. Charge depreciation at 10% per annum. See, what is given. Library books purchased on 1st April 2019. Means on the first date of this accounting year. See, these books here, payment side by books given means new books were purchased in this accounting year, as it is given that they are purchased on 1st April 2019. So mark with adjustment number 6 to books, and again given that there is a depreciation. You can also mark over to the opening balances with adjustment number 6. Now 7th one given regarding investment and interest rate. So look here, in receipt side you can see last item, interest on investment is given 900. So mark with adjustment number 7 to interest on investment. Now one thing you must have observed, that no information is given regarding capital fund. See, जो भी opening balances दिए हुए हैं वहाँ पे आपको कैपिटल फंड की अमाउंट दी है क्या? ओपनिंग कैपिटल फंड दिया है क्या? यहाँ पे नहीं दिया है. ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है. ये इस सम में नया है कि आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है. क्यों? तो कैपिटल फंड, ओपनिंग कैपिटल फंड फाइंड आउट करने. हमें ओपनिंग कैपिटल फंड किसके लिए लगेगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखने के लिए. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस सम. See, I am also side by side I am making working note. ये देखो, यहाँ पे हमने क्या बना लिया है,
in the books of Dhananjay Library, Mumbai, income and expenditure account for the year ended 31st March 2020. और क्या बना लिया है, बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2020. सो नीचे हम वर्किंग नोट में बना रहे हैं ओपनिंग बैलेंस शीट. यू कैन मेक अ वर्किंग नोट. वाई वी आर मेकिंग दिस वर्किंग नोट? टू फाइंड आउट ओपनिंग कैपिटल फंड. क्या फाइंड आउट करने हैं? ओपनिंग कैपिटल फंड. सो राइट डाउन वर्किंग नोट नंबर 1, ओपनिंग capital fund. We are finding this opening capital fund. For this what we are making? Balance sheet as on 31st March 2019. As on 31st March 2019. यानी ये कब की है बैलेंस शीट? लास्ट ईयर की है. क्लोजिंग बैलेंस शीट यानी ये जो भी बैलेंस रहेंगे वो हमें ओपनिंग बैलेंसेस 1 अप्रैल 2019 के मिलेंगे. करेक्ट? ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम सम से. यहाँ पे पहले हम सबसे पहले ये जो एडजस्टमेंट नंबर 1 है तो उसके बैलेंसेस लिख लेते हैं. अभी हमने वर्किंग नोट बनाई है. उसमें बुक्स का बैलेंस कितना दिया हुआ है? 50,000. तो ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख लो असेट साइड बुक्स 50,000. Then given furniture 6,500. Furniture given 6,500. So there is an adjustment of depreciation, but that will be useful for current year balance sheet. Okay? ये हमें डायरेक्ट क्लोजिंग बैलेंसेस दे दिए हैं. फर्नीचर के बाद क्या है? मशीनरी 30,000. 30,000. Write down asset side. Machinery 30,000. ओके, तो हमने ये ओपनिंग बैलेंसेस लिख लिए हैं. अभी हम देखते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट. स्टार्ट विद द रिसिप्ट साइड. ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है कितना? 5,000. अभी ये जो भी ओपनिंग बैलेंस है, रिमेंबर स्टूडेंट, ये जो ओपनिंग बैलेंस है तो वो कहाँ से मिला होगा? तो लास्ट ईयर की जो क्लोजिंग बैलेंस शीट है, ओके, यानी इस साल की ओपनिंग बैलेंस शीट जो हम वर्किंग नोट में बना रहे हैं, उसमें जो कैश का बैलेंस रहेगा वो इस साल का ओपनिंग बैलेंस रहेगा. रिसिप्ट साइड जो लिखते हैं हम, क्योंकि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या है? ये एक तरह का कैश बुक है. तो जो भी कैश का बैलेंस रहता है या बैंक का डेबिट बैलेंस हुआ है, यहाँ पे डेबिट साइड आता है. तो ये जो 5,000 है वो कहाँ पे आएगा? क्लोजिंग, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस शीट में, सॉरी ओपनिंग बैलेंस शीट में. यानी ये जो 31st मार्च का 2019 का दिया है उसमें लिखो आप कैश 5,000. कैश 5,000 ये कहाँ से लाया हमने? तो ये ओपनिंग बैलेंस है किसका? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का. क्लियर? देन सी नेक्स्ट आइटम, एडमिशन फीस ₹4,500. कितना दिया है? एडमिशन फीस 4,500. उसके ऊपर एडजस्टमेंट है तो हम इनर साइड में लिखेंगे ये अमाउंट. राइट डाउन इनकम साइड. एडमिशन फी कहाँ पे आएगा? इनकम साइड. राइट डाउन बाय एडमिशन फीस. बाय एडमिशन फीस 4,500. Now see immediately adjustment on the same. एडजस्टमेंट हमने मार्क किया था. 4th एडजस्टमेंट है. सी 4th एडजस्टमेंट 50% ऑफ द एडमिशन फीस शुड बी कैपिटलाइज. अभी ये कॉमन एडजस्टमेंट है, हर इसमें होता है. कैपिटलाइज बोला है तो क्या करना है? हमें यहाँ से माइनस करना है और कैपिटल फंड में ऐड करना है. लेस 50% कैपिटलाइज्ड. %50 capitalize. So 2,250. So outer column 2,250 means 50% of the admission fees is treated as revenue income. Okay, तो यहाँ पे हमने 50% लिख लिया और बचा हुआ 50% कहाँ पे आएगा? तो कैपिटल फंड में ऐड होगा बैलेंस शीट में.
सो राइट डाउन बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड. फर्स्ट राइट डाउन कैपिटल फंड. ये हमें पता नहीं है अमाउंट, ये हमें कैलकुलेट करनी है अभी तक. उसमें ऐड करना है 50% एडमिशन फीस. 50% एडमिशन फीस दैट इज 2250 लिखा. उसके बाद नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 20,000. अगेन देर इज अ एडजस्टमेंट. सो राइट अगेन इनर कॉलम इनकम साइड. राइट डाउन इनकम साइड बाय सब्सक्रिप्शन. By subscriptions, how much it is? 20,000. Okay, now see, refer second adjustment. What is given? Subscription received in advance amounted to rupees 500. So this is difference in this question. In our all previous sum, subscription is given as outstanding. ओके मीन्स बचा हुआ सब्सक्रिप्शन अभी तक मेंबर्स ने दिया हुआ नहीं है, तो हमने आउटस्टैंडिंग था तो वो क्या किया था, ऐड किया था और असेट साइड लिखा था. अभी यहाँ पे क्या है, सब्सक्रिप्शन किसी मेंबर्स ने एडवांस में दे दिया. एडवांस में यानी वो इस साल का है क्या, नहीं. 500 इस साल का नहीं है, यानी ये जो 20,000 मिले हैं उसमें ये जो है 500 रुपीज़ एडवांस में मिले हुए हैं वो इस साल के नहीं है, तो वो हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा, क्योंकि इसमें हम सिर्फ और सिर्फ इसी साल का लिखते हैं. सो माइनस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 500. सो 20,000 माइनस 500 दैट इज 19,500. इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड से. आउटस्टैंडिंग रहता है तो हम कहाँ लिखते हैं, असेट साइड. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो, ये इनकम हमें एडवांस में मिल गई है. कैपिटल फंड के नीचे कुछ 2-3 लाइनें छोड़ दो, उसके नीचे बाद में लिखो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस आउटर कॉलम 500. ओके, तो ये हो गया. उसके बाद नेक्स्ट आइटम देखो, सब्सक्रिप्शन के बाद क्या दिया, लेक्चर हॉल हायर चार्जेस 4,200. बाद में क्या दिया है, मिसलेनियस इनकम 250. ये दोनों आइटम्स कहाँ जाएंगे, इनकम साइड में. रेवेन्यू इनकम है, राइट डाउन इनकम साइड बाय क्या था, यहाँ पे देखो लेक्चर हॉल हायर चार्जेस 4,200. हायर चार्जेस राइट आउटर कॉलम 4,200. और क्या था, मिसलेनियस इनकम, वो भी लिख लो, एडजस्टमेंट नहीं है उसके ऊपर. $250. ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ₹900. अभी एडजस्टमेंट है इसके ऊपर. सेवेंथ एडजस्टमेंट, लुक हियर, द इन्वेस्टमेंट वे परचेस्ड ऑन 1 अप्रैल 2019. कब परचेज किया है, 1 अप्रैल को. एंड दे कैरी इंटरेस्ट एट 20% पर एनम. कब परचेज किए हैं, 1 अप्रैल, यानी अपना अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को, राइट. 1 अप्रैल 2019 to 31 March 2020. दिस इज अवर अकाउंटिंग ईयर. तो ये जो इन्वेस्टमेंट परचेज किया है ये बिगिनिंग में फर्स्ट डे पे ही परचेज किया है, यानी उसका इंटरेस्ट पूरे ईयर का लगेगा, फुल 12 मंथ्स का लगेगा. और यहाँ पे इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 900. और इंटरेस्ट के परसेंटेज क्या है, 20%. इन्वेस्टमेंट है वो कब परचेज किया है, 1 अप्रैल. तो 12 मंथ का इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है. वर्किंग नोट लिखो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन
investment. See, investments purchase अमाउंटिंग टू रुपीज़. यहाँ पे देखो पेमेंट साइड में बाय इन्वेस्टमेंट दिया है, कितना है 6000. एडजस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट वेयर परचेस्ड. ओके, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में कहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे स्पेसिफाई किया है कि ये जो इन्वेस्टमेंट पेमेंट साइड दिया है वो परचेज कब दिया किया है, फर्स्ट डे पे ही किया है, तो उसका इंटरेस्ट जो रहेगा पूरे साल का रहेगा. ये इन्वेस्टमेंट देखो 6000, सो 6000 का इन्वेस्टमेंट है. 20% उसके ऊपर क्या है, इंटरेस्ट है. सो कितना आना चाहिए इंटरेस्ट, 12000. सो दिस इज 600 इंटू 2, 1200 इंटरेस्ट आना चाहिए. और रिसिप्ट साइड में कितना दिया है, 900 लेस इंटरेस्ट. ये जो 1200 है वो एक्चुअल इंटरेस्ट है, और ये इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना है, 900. सो 1200 माइनस 900 वी गेट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ₹300. तो अभी हम जैसे आउटस्टैंडिंग का इफेक्ट देते हैं इनकम का कोई भी, बस उसी तरह से आपको ये इफेक्ट देना है. राइट डाउन इनकम साइड बाय, ये देखो ये जो रिसिप्ट साइड दिया हुआ है इंटरेस्ट कहाँ पे आएगा, इनकम साइड, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट. वहाँ पे कितना दिया है, 900 प्लस आउटस्टैंडिंग जो हमने कैलकुलेट किया 300 आया. राइट, तो आउटर कॉलम में कितना आना चाहिए, 1200. बराबर. अभी ये जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा, बैलेंस शीट में. बैलेंस शीट में असेट साइड आप इन्वेस्टमेंट में ऐड भी कर सकते हो या अलग से भी दिखा सकते हो. सी राइट डाउन असेट साइड इन बैलेंस शीट. सी इन्वेस्टमेंट परचेज किए थे कितने के, 6000 के, तो हम लिख लेते हैं इन्वेस्टमेंट्स. डायरेक्ट आउटर कॉलम 6000, नीचे लिखो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जस्ट कैलकुलेट किया 300. आप इसमें ऐड भी कर सकते हो इनर कॉलम में और आउटर कॉलम में लिख सकते हो, वो भी चलेगा. सो अवर रिसिप्ट साइड इज ओवर. नाउ सी पेमेंट साइड. फर्स्ट आइटम बाय सैलरीज 9000, एडजस्टमेंट गिवन, एडजस्टमेंट नंबर 3rd. आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया है 1300. अभी जो भी पेमेंट साइड दिया है तो वो कौन सी साइड आएगा, एक्सपेंडिचर साइड. राइट डाउन एक्सपेंडिचर साइड, यानी जो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो यहाँ पे लिखेंगे हम. 2 सैलरीज, टू सैलरीज 9000 प्लस जो एडजस्टमेंट में दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग वो ऐड करना है 1300. आउटस्टैंडिंग मीन्स अनपेड है सैलरी, इस साल की है पर अभी तक दी नहीं है, और हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में पूरा इस साल का दिखाना रहता है, तो आउटस्टैंडिंग क्या कर दिया, ऐड कर दिया. और ये आउटस्टैंडिंग है, आज नहीं तो कल देना ही है, तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा, लाइबिलिटी साइड. राइट डाउन लाइबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग सैलरीज. सी एक्सपेंसेस अगर आउटस्टैंडिंग रहते तो वो लाइबिलिटी में आते हैं, इनकम एडवांस में मिलती है तो वो लाइबिलिटी में आते हैं. नेक्स्ट आफ्टर सैलरीज व्हाट इज गिवन, रेंट वर्थ ₹7,500. अगेन एडजस्टमेंट same, third adjustment. Outstanding rent given ₹950. So write down expenditure side. To rent 7,500 plus outstanding, add outstanding
Outstanding given worth rupees 950. So 7,500 plus 950, it comes 8,450. Second effect, just like outstanding salary, liability side, outstanding rent 950. Next, after rent, investment, which we already written to asset side. Then stationery 1350, electricity charges 850. Both will go to expenditure side. Write down expenditure side. To stationery 1350. Next, to electricity charges 850. देखो ये स्टेशनरी और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लिख लिया, उसके ऊपर कुछ एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्ट लिख लिया हमने. बाद में बुक्स, सी बुक्स यानी पेमेंट साइड दिया है, यानी इस साल इतने नए बुक्स परचेज किए हैं, कितने के 5000 के. अभी उसके ऊपर एडजस्टमेंट था, एडजस्टमेंट नंबर 6 देखो. Library books were purchased on 1st April 2019 and they charge depreciation at 10% per annum. तो ये जो भी बुक्स हैं परचेज किए हैं उसके ऊपर क्या आएगा, डेप्रिशिएशन आएगा. और जो पुराने बुक्स है ऑफकोर्स उसके ऊपर भी आएगा. ये डेट दिया, इसका मतलब क्या है कि कितने मंथ्स के लिए आपको ये न्यू बुक्स जो परचेज किए हैं उसके ऊपर डेप्रिशिएशन लेना है. ओके, बुक्स यहाँ पे पेमेंट साइड दिए हुए हैं, कितने के परचेज किए हैं 5000. अभी देखो आपको ओपनिंग बैलेंसेस दिए थे बुक्स के, कितने थे 50,000 है बुक्स का ओपनिंग बैलेंस. अभी जो भी ओपनिंग बैलेंसेस है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आने ही वाले हैं. तो राइट डाउन असेट साइड, राइट डाउन असेट साइड बुक्स. सी ये जो भी ओपनिंग बैलेंसेस है, अनलेस एंड अनटिल कि ऐसा कुछ दिया है कि ये सेल कर दिया है, जैसे ये फर्नीचर है, तो अगर कुछ दिया नहीं है तो वो एज इट इज़ क्लोजिंग बैलेंस शीट में आने ही वाले हैं. लास्ट ईयर के जो भी असेट है वो सिर्फ कुछ नया एडिशन होगा तो वो उसमें प्लस करना होगा, डेप्रिशिएशन होगा वो माइनस करना होगा. तो बुक्स 50,000 राइट हियर इन इनर कॉलम. ओके, प्लस जो नया परचेसेस दिया है पेमेंट साइड वो ऐड करना है. ऐड परचेसेस 5000, ऐड परचेसेस 5000. सी दिस इज पेमेंट साइड गिवन, बाय बुक्स 5000. So plus that 5,000, so 50,000. हाँ, so 50,000 plus 5,000 it comes 55,000. अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लाइब्रेरी बुक्स परचेज के वो हमने ऐड कर दिए. चार्ज डेप्रिशिएशन एट 10% पर एनम. तो ये जो 50,000 है उसके ऊपर 10% लिए तो कितने आ गए 5,000. और ये 5,000 पे डेप्रिशिएशन लिया पूरा साल का तो वो कितना आता है 500. और एनी हाउ ये जो न्यू परचेस है वो फर्स्ट डे को ही लिया है, यानी वो 12 मंथ का ही लेना है. यानी ये टोटल 55,000 पे हमें डेप्रिशिएशन पूरे साल का ही लेना है, लेस डेप्रिशिएशन 10%. सो 55,000 इंटू 10%, 5,500. सो आउटर कॉलम 49,500. ये 50,000 का 5,000 और 5,000 का 500. So we deducted depreciation from books. Now the second effect of the depreciation on books will go to, as you all know, where depreciation come, expenditure side. Write down expenditure side. To depreciation on books 5,500.
So after books, what is the other item given? Outstanding expenses, rupees 500. So what it mean कि लास्ट ईयर का ये 2018-19 ब्रैकेट में दिया है, लास्ट ईयर कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होंगे, वो इस साल दे दिए हैं, पेमेंट कर दिया है, तो उसका इफेक्ट कहाँ पे आएगा? इस साल के इसमें आएगा क्या? कहाँ पे? नहीं, लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है वो पेमेंट दे दिया है, इसलिए पेमेंट साइड में दिया, तो उसका इफेक्ट आपको यहाँ पे आएगा. आपको इसका यूज ओपनिंग कैपिटल फंड फाइंड आउट करने के लिए जो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई है उसमें लिखना है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 500. उसके बाद क्या दिया हुआ है? बैलेंस कैरिड डाउन 4650, यानी कैश का क्लोजिंग बैलेंस है, ये भी कॉमन है, आपको पता है. कहाँ पे लिखते हैं हम? बैलेंस शीट में असेट साइड लिखो कैश इन हैंड 4650. नाउ स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्लोज दिस. हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कर दिया है, ये क्लोज कर लो ओपनिंग बैलेंस शीट. यानी आपको जो भी डेबिट साइड में जो भी बैलेंस आएगा वो क्या होगा? कैपिटल फंड. असेट साइड टोटल 91,500. यू कैन चेक इट, 91,500. सो यहाँ पे जो बैलेंस आया है 91,000, ये जो बैलेंसिंग फिगर है वो क्या है? कैपिटल फंड. सी स्टूडेंट, दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग दिस टाइप ऑफ सम. हमने ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनाई है? ये जो ओपनिंग कैपिटल फंड है वो फाइंड आउट करने. इसका यूज हमें कहाँ आएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में. ये जो हमने कैपिटल फंड लिखा है वहां पे लिख लो इनर कॉलम 91,000. ओके, अभी डोंट फॉरगेट टू राइट डाउन दिस ओपनिंग बैलेंसेस. बुक्स वी ऑलरेडी रिटेन. फर्नीचर कितना दिया हुआ है? 6,500. राइट डाउन हियर furniture. Adjustment is given on furniture. See adjustment number 5, furniture is to be depreciated at 10% per annum. So write down inner column furniture 6,500 less depreciation 650. So outer column it will go 5,850. Second effect of depreciation, write down expenditure side debit to depreciation on furniture 650. Okay, now see some other fixed assets. ओपनिंग बैलेंसेस बुक्स हो गया है, फर्नीचर हो गया, और क्या बाकी है? मशीनरी 30,000. मशीनरी के ऊपर कुछ भी दिया हुआ नहीं है एडजस्टमेंट वगैरह, तो हमें डायरेक्टली लिख लेना है मशीनरी. एक्चुअली फिक्स एसेट्स ऊपर आने चाहिए पर यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं नीचे लिख रही हूँ. मशीनरी 30,000. Now students, close first income and expenditure account to find out surplus or deficit. See here you can see income side is greater 27,400. Income side total is 27,000. See here I am writing income side 27,400 and less expenditure side total. Expenditure side total is 27,100. So surplus comes 300. So write down here to surplus rupees 300, that is excess of income over expenditure. Now add this surplus in balance sheet, add in capital fund, add surplus
300. So total outer column 93,550. Now do total of both side, balance sheet, asset and liability. It comes 96,300 of both the sides. $96,300. So students, here we finish with our question number 12, which you will get on page number 122 of textbook. Okay, thank you students. Have a good day.